ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری دوست اپنے حسین بھائی کے لیے میرا رشتہ لائی۔ میں بہت خوش ہو گئی کیونکہ وہ لوگ بہت امیر تھے۔ اماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور وہ میرے لیے مہنگے مہنگے کپڑے لائے، لیکن وہ جو بھی کپڑے لاتے اس کے دامن پر زرد رنگ کا نشان ہوتا جو زیادہ نمایاں نہ ہوتا۔ میں بھی نظر انداز کر دیتی۔ یوں ہی میری جلد شادی ہونے لگی۔ میں دلہن کے لباس میں تھی کہ شرارے پر بھی وہی نشان تھا۔ میں نے کچھ سوچتے باتھ روم جاتے وہ نشان دھو دیا، لیکن چیخیں نکل گئیں جب میری کمر۔ زمل کب سے اپنے موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی مگر وہاں پر کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود ہی موبائل اٹھا کر اپنی دوست کو کال کی۔ کافی دیر کال جاتی رہی مگر اس کی دوست نے کال پک نہ کی۔ وہ کال کٹ ہی کرنے لگی کہ دوسری طرف سے کسی نے کال پک کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے کال کٹ کر دی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ زمل ایک ہی بہن تھی جو کہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ ماں باپ نے پھر بھی بہت لاڈ سے پالا تھا۔ باپ تھوڑا سخت مزاج تھا لیکن اپنی بیٹی سے پیار کرتا تھا۔ اماں نے تو ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ زمل کی خواہشات بہت بڑی تھی لیکن اس سے لگا تھا کہ یہ اس کی بدقسمتی ہے جو وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی ہے، لیکن اس سے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی آگے کیسی ہونی تھی۔ غریب ہونے کے باوجود اس کے والدین نے اسے اپنی مرضی کے اسکول میں ڈالا، جہاں وہ پڑھنا چاہتی تھی ادھر ڈالا۔ اس کے بعد اسے اچھے کالج میں ڈالا جہاں وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ فرمائشیں ہی کی تھی، کبھی غریب ماں باپ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک ہی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ وہ ابھی بھی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ اس کی اماں کمرے سے باہر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ نہ جانے اس کی اماں نے اسے کتنی بار منع کیا تھا کہ وہ دیر تک نہ جاگے، مگر وہ اپنی اماں کی بات ہی کب سنتی تھی۔ اس نے بس اپنی مرضی کرنی ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی دوست دیر تک جاگتی ہے، وہ بھی دیر تک جاگا کرے۔ اس کی اماں نے کمرے میں آ کر اسے سمجھایا اور اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی اماں سے بحث شروع کر دی۔ اس کی اماں کو جتنی بحث سے چڑ تھی وہ اتنی ہی بحث کرنے لگ جاتی۔ صبح صبح وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی اماں نے اس کی طرف دیکھا جو کہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی، اور اس کی خاصی وجہ یہ تھی کہ اس کی دوست نے اسے لینے آنا تھا۔ زمل، میں نے کتنی بار کہا ہے تم خود چلی جایا کرو، یہ روز روز اپنی دوست کے ساتھ جاتی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی اماں نے سنجیدگی سے کہا اور اس سے اپنی اماں کی اس بات پر غصہ آ گیا۔ وہ پہلے بھی اماں کو کافی بار بتا چکی تھی کہ اس کی دوست بہت اچھی ہے، جیسا اسے سمجھتی ہیں ویسی نہیں ہے، لیکن آپ تو چاہتی ہیں کہ میں اپنی دوست کے ساتھ نہ جایا کروں کیونکہ اس کی دوست ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کی اماں کو ڈر لگتا تھا نہ جانے امیر لوگ کیسے ہوتے ہوں گے، اور اس امیر لڑکی نے ان کی بیٹی سے دوستی کیوں کی۔ وہ بس یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ اس نے بہت بار اپنی اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، نہ اس کی اماں کوئی بات سمجھتی اور نہ ہی وہ اپنی اماں کی کوئی بات سمجھتی۔ وہ گھر سے باہر آئی، تھوڑا سا آگے آئی ہی تھی کہ اس کے پاس اس کی دوست کی گاڑی رکی۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ دونوں باتیں کرنے لگیں۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص مرر میں سے اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس کو عجیب سا لگا تو وہ باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی دوست کو حیران کی ہوئی اچانک سے زمل کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسے باہر کی طرف کیوں دیکھنے لگ گئی ہے۔ اس کی دوست اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، زمل، میں تو تمہیں بتانا بھول گئی، آج میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوں۔ بھائی نے بولا ہے آئندہ وہ مجھے خود ہی چھوڑ جائیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ وہ اس کا شک نہیں تھا، وہ شخص سچ میں ہی اسے دیکھ رہا تھا، لیکن کیوں دیکھ رہا تھا یہ اسے سمجھ نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کا کالج آ گیا۔ وہ جب گاڑی سے اتری تبھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ کالج کے اندر داخل ہو رہی تھی اور وہ شخص کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور وہ دوسری طرف دیکھنے لگ گیا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ سارا دن اس کا اسی الجھن میں گزر گیا۔ اس کی دوست اس سے پوچھتی رہی آخر اسے ہوا کیا ہے، وہ صبح سے اتنی پریشان کیوں ہیں۔
मगर उसने कोई जवाब न दिया। वो इससे बातें करती रही मगर वो अपनी ही सोचों में मगन रही। इसकी दोस्त ने आज पहली बार उसे इस तरह गुमसुम देखा था। न जाने वो किन सोचों में डूबी हुई थी जो इसकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही थी। जिमिल, मैं कब से तुम्हारे साथ बातें करने लगी हूँ, क्या हुआ है, घर में कोई मसला है क्या? इसकी दोस्त ने अपनायत से पूछा, क्योंकि वो तब भी परेशान होती जब उसके घर में कोई मसला होता था, लेकिन आज तो वो कुछ बता भी नहीं रही थी, वरना तो वो अपनी हर बात उसके साथ शेयर करती थी। जिमिल, क्या अकेले जाना है? अभी मेरा भाई आता होगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, थोड़ा इंतज़ार कर लो। उसकी दोस्त ने उसे जाने से रोका। वो रुकना तो नहीं चाहती थी मगर उसकी दोस्त ने जिद की तो वो रुक गई। काफ़ी टाइम बाद उसका भाई लेने आया। वो खामोश खामोश सी गाड़ी में बैठ गई। अब उसने ध्यान न दिया कि वो शख्स उसे देख रहा है या नहीं। वो अपनी दोस्त के साथ बातों में ही मसरूफ़ रही। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई बात कर ले, मैं आपका कोई ड्राइवर नहीं हूँ। इसने मुड़कर पिछली सीट पर बैठे जिमिल की तरफ देखकर कहा, और जिमिल को इस शख्स पर गुस्सा आया। इसका बस नहीं चल रहा था, वो यहाँ सड़क पर ही उतर जाती या अपने दोस्त को इसकी भाई की हरकत बताती। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया और वो बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। यार, आइंदा मुझे तुम न लेने आना, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दुनिया जहाँ के फजूल लोग मेरी तरफ देखें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और उसके दोस्त के भाई को पता चल गया कि वो उससे कह रही है। वो हंसने लगा और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो खामोशी से बैठी रही। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के सामने उतर गई। उतरते हुए वो इसकी बात का जवाब देना ना भूला कि न जाने लोगों को अपनी खूबसूरती पर नाज क्यों है। इसकी बात सुनकर न जाने क्यों उसे हंसी आने लगी। इससे पहले कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की, दोस्ताना अंदाज में। इस वजह से शायद उसे अच्छा लगा था। वो घर में दाखिल हुई, उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसकी अम्मा उसके चेहरे को मशकूक नज़रों से घूरने लगी। वो खुश घूंट भरती हुई निगाहें झुका गई। वो खुद नहीं जानती थी उसने अपनी अम्मा से नजरें क्यों चुराई थीं। उसकी अम्मा उसे खाने का कहकर किचन की तरफ चली गईं। वो जल्दी से कमरे में आ गई, बैग साइड पर रखा, कपड़े वगैरह चेंज किए थे कि उसकी अम्मा उसे खाना देकर चली गईं। माँ के जाते ही उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि अभी तो वो अपने दोस्त से मिलकर सारा दिन उसके साथ गुजार कर बैठी थी, फिर उसकी दोस्त की कॉल क्यों आने लग गई थी। न जाने अब उससे कौन सा काम याद आ गया था। उसने कॉल कट कर दी और सुकून से खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसने अपनी दोस्त को कॉल की। हाँ यार, मैं खाना खा रही थी, इस वजह से कॉल कट की थी। तुमने कॉल क्यों की? घर जाते ही और कोई अहम काम नहीं था जो मुझे कॉल करने लग गई थी? उसने हंसते हुए अपनी दोस्त से कहा। और उसकी दोस्त जिमिल की बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने तो जिमिल को कॉल की नहीं थी। और वो हैरानगी से कहने लगी, मैंने तो कोई कॉल नहीं की थी, फिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि मैंने कॉल की? जिमिल को झटका लगा उसकी बात सुनकर। अगर उसने कॉल नहीं की थी तो फिर वो किसकी थी? थोड़ी देर पहले तक तो उसके ही नंबर से कॉल आई थी। वो परेशान हो गई और उसे यकीन दिलाने लगी कि उसी के नंबर से कॉल आई है। आखिर में उसकी दोस्त ने हार मानते हुए कहा, अच्छा मैंने ही कॉल की होगी, शायद मुझे याद ना हो। उसे फिर भी बेचैनी हो रही थी। अगर उसकी दोस्त ने कॉल नहीं की थी तो फिर उसे कौन कॉल कर सकता है? वो भी ऐसे कॉलेज से आते ही अचानक उसके दिमाग में झमाका हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और नफ़ी में सर हिलाने लगे। रात के वक्त वो छत पर खड़ी हुई थी, चांद को देखते हुए। न जाने उसकी सोच कहाँ चली गई। बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अचानक अम्मा के बुलाने पर अपनी होश की दुनिया में वापस आई और अम्मा को देखकर एकदम से घबरा गई और हैरानगी से पूछने लगी, क्या हुआ है अम्मा? उसकी अम्मा को गुस्सा आया। वो खुद ही न जाने क्यों खोई हुई थी और उससे पूछ रही थी कि उन्हें क्या हुआ है। वो उससे ये कहकर नीचे चली गई कि काफ़ी रात हो गई है, जाकर सो जाओ। वो वहाँ पानी पी रही थी कि अम्मा की बात सुनकर अस्बात में सर हिलाकर फिर से वहीं खड़ी रही। वहाँ खड़े खड़े उसे एहसास ही न हुआ कि काफ़ी रात हो गई। जब वो कमरे में आई उसने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। वो जल्दी से अपने बेड पर बिखरी हुई किताबें समेट कर सो गई। सुबह उसकी आंख खुली, उसने घड़ी की तरफ देखा जहाँ 10 बज रहे थे। वो आंखें फाड़े घड़ी को देखने लगी। उसे कॉलेज से देर हो गई थी।
उसे गुस्सा आया कि उसकी अम्मा ने उसे उठाया क्यों नहीं। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली। उसकी अम्मा सिहन में बैठी हुई कपड़े सिलाई कर रही थी। वो गुस्से में अपनी अम्मा पर चढ़ दौड़ी और उन्हें बातें सुनाने लग गई। अम्मा, आपको नहीं पता था क्या? मुझे कॉलेज जाना है, मगर आपको क्या, छुट्टी मेरी हुई है, टाइम मेरा ज़ाया हुआ है। आपको क्या, आपने तो मुझे सुबह उठाया भी नहीं। वो गुस्से में कहने लगी। उसकी अम्मा उसके मुंह की तरफ देखने लगी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने सुबह कितनी बार अपनी बेटी को जगाया था, मगर देर से सोने की वजह से उसकी आंख नहीं खुल रही थी। उसने गुस्से में कह दिया अपनी अम्मा से उसे कॉलेज नहीं जाना। अब उठने के बाद अपनी अम्मा से झगड़ रही थी। उन्होंने उसे नहीं जगाया। जब उसकी अम्मा ने उसे बताया कि सुबह उसने क्या कहा था, अपनी अम्मा की बात सुनकर वो एकदम से शर्मिंदा हुई। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था सुबह उसने ऐसा बोला है। अब उसे एहसास हो रहा था। वो जब भी रात को देर से सोती थी, सुबह उसकी आंख देर से ही खुलती थी। इसमें इसका अपना ही कसूर था, उसकी अम्मा का कोई कसूर नहीं था। वो किचन की तरफ गई। उसने पहले नाश्ता किया, फिर अपनी अम्मा के साथ काम करने लग गई। शाम के वक्त वो फारिग हुई और अपने कमरे में गई। उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा, जहां उसकी दोस्त की इतनी सारी कॉल्स आई हुई थी। उसने जल्दी से अपनी दोस्त को कॉल की, मगर उसने कॉल कट कर दी। इसका फ़ौरन से मैसेज आ गया, मैं कॉल पर बात नहीं कर सकती, तुम मैसेज करो। इसका मैसेज पढ़कर उसे थोड़ी हैरत भी हुई, क्योंकि वो अक्सर उसे कहती थी उसे बात करना अच्छा लगता है, मैसेज उसे जहर लगते हैं। मैसेज पर उसे लिखा नहीं जाता। आज उसे अपनी दोस्त की वो बात याद आ रही थी, मगर आज फिर न जाने क्यों वो कह रही थी कि मैसेज पर बात करते हैं। वो मैसेज पर अपनी दोस्त से बातें करने लग गई। काफ़ी बातें करते करते उस वक्त उसे एहसास ही न हुआ कि कब रात हो गई। उसने अपनी दोस्त को अल्लाह हाफिज़ कहा, मगर उसे हैरत तब हुई जब वो कहने लगी उसे और बात करनी है। आज से पहले तो उसकी दोस्त की कभी इतनी लंबी बात नहीं की थी। वो यूं ही बैठी हुई थी, मोबाइल में लगी हुई थी कि उसकी अम्मा आ गई और हैरत से उसे देखने लगी। वो तो गोया मोबाइल में गर्क हुई पड़ी थी। उससे क्या, अम्मा ने गुस्से में उसे मोबाइल छोड़ने का कहा। उसने जल्दी से मोबाइल रख दिया। उसकी अम्मा मशकूक निगाहों से उसे देखने लगी। वो संजीदगी से बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? दोस्त से बात कर रही थी। उसकी अम्मा खाने का कहकर जा चुकी थी, मगर उसे तो भूख ही नहीं लगी थी। वो सोने के लिए लेट गई थी, मगर आज उसे अपनी दोस्त का रवैया बहुत बदला हुआ लग रहा था। न जाने वो इसके साथ अजीब अजीब बातें क्यों कर रही थी। आज पहली बार उसकी दोस्त ने उससे ऐसे सवाल किए थे। वो किसी को पसंद तो नहीं करती, हालांकि उसकी दोस्त सब जानती थी कि वो किसी को पसंद नहीं करती, फिर भी ऐसे पूछ रही थी। अगले दिन वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, फिर भी उसके जहन पर उसकी दोस्त की बातें सवार थीं। वो घर से बाहर निकली, थोड़ा सा ही चली थी कि सामने से उसकी दोस्त की गाड़ी आ गई। वो गाड़ी में बैठी। सबसे पहले उसकी दोस्त कल कॉलेज न आने की वजह पूछने लगी। उसने हैरानगी से देखा, क्योंकि वो कल मैसेज पर अपनी दोस्त को वजह बता चुकी थी। इसके बावजूद भी उसकी दोस्त पूछ रही थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसकी दोस्त का भाई बोलने लग गया, अगर तुम्हारी दोस्त ने छुट्टी कर ली है तो तुम क्यों पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करने लग गई हो? भाई 100 मसले मसाइल होते हैं, इस वजह से छुट्टी की होगी, तुमने कभी नहीं की। वो ड्राइविंग करता हुआ अपनी बहन पर घूरने लगा। इसकी बहन हंसने लगी और कहने लगी, नहीं पूछूंगी भाई, आइंदा छुट्टी की वजह। थोड़ी देर बाद गाड़ी कॉलेज के सामने रुकी। उसकी दोस्त जल्दी से गाड़ी से निकली। वो अभी निकल ही रही थी कि अपने दोस्त के भाई की आवाज़ सुनकर ठहरी। मुझे आपसे बात करनी थी, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लेती तो। वो इसकी बात को इग्नोर करती हुई गाड़ी से निकल गई। उसे गुस्सा आया इस पर, न जाने वो क्यों इसके साथ ऐसी बात कर रहा था। कॉलेज में दाखिल होते हुए इसकी दोस्त बातों में लगी हुई थी और हंस रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान उसके भाई की तरफ था, इसकी बातों की तरफ ना था। वो बस यही सोच रही थी, न जाने क्यों उसका भाई उससे बात करना चाहता है। उसने सोच लिया था कि आइंदा वो अपनी दोस्त के साथ कॉलेज नहीं आएगी, ना ही जाएगी। इसकी माँ ठीक ही तो कहती थी कि वो खुद ही आया जाया करे। छुट्टी के वक्त वो जल्दी कॉलेज से निकल गई और पैदल ही अपने घर की तरफ चल गई, क्योंकि उसका भाई देर से आता था। वो अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि गर्मी
और धूप से उसका बुरा हाल होने लगा। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। इतने में उसे पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, मगर वो इग्नोर करने लगी। अचानक उसे पीछे से अपनी सहेली की आवाज़ सुनाई थी, जो उसे गुस्से से डांट रही थी। पागल हो गई हो? देखो तो सही कितनी गर्मी है बाहर। किसने कहा था तुम्हें पैदल घर जाने को? रास्ता भी इतना सुनसान है। बोला भी था मेरे साथ आया जाया करो, इसकी दोस्त ने गुस्से में कहा, मगर वो चलती जा रही थी। इसकी दोस्त ने एकदम से उसका बाजू पकड़ लिया और गाड़ी की तरफ ले आई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इसका इतना ख्याल क्यों रखती है, क्यों उसे अकेले बाहर जाने नहीं देती थी। वो भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई, मगर उसने कोई बात न की। अपने घर के सामने खामोशी से उतर गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके इस रवैये की वजह से उसकी दोस्त को कितना बुरा लगा है। वो इसका इतना ख्याल रखती थी, इसके बावजूद भी उसने अपनी दोस्त के साथ ऐसा किया। घर आकर उसे भी एहसास हुआ कि उसे अपनी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने गलत किया था। शाम के वक्त उसने अपनी दोस्त को मैसेज किया, क्योंकि शाम तक उसकी दोस्त ने खुद कोई मैसेज नहीं किया था, जिसका साफ मतलब था कि वो उससे नाराज़ है और उसका नाराज़ होना फितरी था। उसकी दोस्त ने जब कॉल पिक की, वो गुस्से में अपनी दोस्त को डांटने लग गई और उसकी दोस्त हैरान हुई। न जाने वो उसे क्यों डांट रही थी। हद हो गई है, तुम मुझे अभी तक डांट रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो सारी गलती तुम्हारी है। तुम खुद कॉलेज से निकली थी, मैंने कहा भी था मेरा इंतज़ार करना, लेकिन तुम खुद ही चली गई। इसकी दोस्त सख्त लहजे में कहने लगी। वो अपनी दोस्त की बात पर सर्द आह भरकर बोली, तुम नहीं समझोगी मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकी, तुम नहीं जानती। उसने संजीदगी से कहा और कॉल कट कर दी। उसका दिल तो किया कि वो अपने दोस्त को बता दे, मगर फिर उसमें हिम्मत ना हुई कुछ भी बताने की। अभी थोड़ी ही देर हुई थी उसके साथ बात किए हुए, फिर से उसकी दोस्त की कॉल आने लग गई। उसने कॉल पिक की, मगर कॉल कट हो गई। वो हैरानगी से मोबाइल को देखने लगी। इसकी दोस्त के मैसेज आने लगे। वो इससे बात करना चाहती थी। उसे गुस्सा आने लगा। न जाने इसकी दोस्त को क्या हो गया था, क्यों पागलों वाले काम कर रही थी। उसने गुस्से में वहाँ मोबाइल बंद करके रख दिया। अगले दिन जब वो कॉलेज आई, थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त भी आ गई। आज वो अपनी दोस्त के साथ नहीं आई थी, अकेली ही आ गई थी। इसकी दोस्त आज न जाने क्यों उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो हैरान थी अपनी सहेली की इस हरकत पर। अचानक उसकी दोस्त से सब्र ना हुआ। मुस्कुराती हुई उससे कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेरा भाई बहुत प्यारा है। मेरा दिल करता है कि उनकी बीवी भी तुम्हारी तरह प्यारी हो और मेरे भाई के लिए तुम परफेक्ट हो। वो हैरत से अपनी दोस्त की बात सुनने लगी। उसे लगा वो इसके साथ मजाक कर रही है, क्योंकि वो तो एक गरीब बाप की बेटी थी। वो कहाँ और उसका भाई कहाँ। उसने हंसते हुए अपने दोस्त से कहा, ऐसा मजाक मेरे साथ ना किया करो। इसकी दोस्त संजीदा हो गई और कहने लगी, उसे मजाक क्यों लग रहा है, वो सच में उसे भाभी बनाना चाहती है। वो सोचने लगी, उसका भाई इतना प्यारा है, वो कभी मुझे पसंद नहीं कर सकता। उसकी सहेली उसके बारे में क्या सोचती होगी कि शायद मैंने उसके भाई को अपने पीछे लगाया है। वो अमीर लड़का था, फिर वो क्यों मुझसे शादी करता। उसे लगा शायद उसकी दोस्त थी, ये सब चाहती है। इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी शादी तो अम्मा अब्बा ने ही करनी है, मुझे कोई हक नहीं ये फैसला करने का। उसने अपनी दोस्त से निगाहें चुरा कर कहा। उसकी दोस्त के लबों से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। हाँ यार, ये जो दरमियान में अम्मा अब्बा आ जाते हैं, ये बहुत बुरा होता है। मेरी अम्मा भी नहीं मान रही, लेकिन भाई कोशिश कर रहे हैं उन्हें मनाने की। वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए जल्द ही मान जाएंगी और तुम्हारे घर वालों को भी मना लेंगी। कितना अच्छा लगेगा ना, तुम मेरी भाभी बनोगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी दोस्त के चेहरे की तरफ देखने लगी। अब उसे लग रहा था कि उसकी अम्मा क्यों एक गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बनाएंगी। मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा भाई मुझसे शादी करे। वो खुद इतना प्यारा है, मुझ जैसी लड़की से क्यों करेगा। मामूली सी लड़की तो हूँ। उसने गोया जैसे खुद पर तंज किया हो। इसकी दोस्त ने हैरत से उसे देखा और बोली, जानती हो जब तुम हमारे घर आती थी, मेरा भाई उस वक्त से तुम्हें पसंद करता है, तुमसे मोहब्बत करता है, और उसने अम्मा के साथ जिद लगा रखी है कि वो शादी करेगा तो बस तुमसे, वरना वो शादी नहीं करेगा। और जानती हो चंद दिन पहले वही तुमसे मैसेज पर बात कर रहा था। मैं नहीं थी, मुझे भी बाद में उसने बताया था। भाई बहुत अच्छा है,
اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اپنی دوست کی بات سن کر بے چین ہو گئی۔ نہ جانے اس کے بھائی کو وہ کیوں پسند آ گئی تھی۔ اچھا، ابھی اس بارے میں کسی سے بات نہ کرنا اور سوچنا ضرور میرے بھائی کے بارے میں۔ اچھا ہے، بہت خیال رکھے گا تمہارا۔ وہ اپنی دوست کے منہ دیکھنے لگی۔ اسے اپنی دوست کی باتیں آج بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ چھٹی کے وقت اسے اپنی دوست کے ساتھ ہی گھر جانا پڑا کیونکہ موسم بہت خراب تھا۔ آج تو وہ بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی اور بہت تیز ہو گئی۔ یار، آگے سے راستہ بہت خراب ہے، میرے خیال میں ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، سہیلی نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ زمل ایک دم سے گھبرا گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ اس کی دوست سمجھاتی ہوئی اسے کہنے لگی وہ خود ایک بار اس کے گھر چلے، پھر وہ اسے خود چھوڑنے جائے گی۔ کافی دیر اس کی دوست سمجھاتی رہی، آخر وہ مان گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے سامنے رکی جو کہ اس کی دوست کا گھر تھا۔ وہ جلدی سے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی دوست اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ وہ جب تک کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اتنے میں اس کی دوست کی اماں آئی۔ وہ عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگی، ان کی نگاہوں سے اسے الجھن ہونے لگی۔ وہ بظاہر تو ان سے خوش دلی سے ملی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ آنکھیں بند کرے اور اپنے گھر میں پہنچ جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی دوست کو کہا کہ اسے گھر جانا ہے۔ اس کی دوست نے اسے کہا کہ چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ اپنے بھائی کو کہہ آئی جو کہ باہر آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے اسے کیوں اس عورت کی نگاہوں سے الجھن ہوئی تھی، کچھ تو تھا۔ اگلے دن جب وہ کالج آئی، اس کی دوست بہت خوش تھی اور اسے مسکراتے ہوئے بتانے لگی، کل جب اماں نے تمہیں دیکھا تھا اس کے بعد وہ شادی کے لیے مان گئی تھیں۔ میں اور بھائی تو بہت خوش ہیں، اماں بھی بہت خوش ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اماں اتنی جلدی مان جائیں گی۔ تمہیں جب ہم چھوڑ کر گھر گئے اور اماں تو مانی بیٹھی تھی تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے، میں تو بہت خوش ہوں۔ وہ اپنی دوست کی باتیں سن کر فقط مسکرا ہی سکی۔ اس سے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا کیونکہ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی شادی ایک ایسے گھر میں ہوگی جہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اسے سب کچھ میسر ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی اور اپنی سہیلی کو سنتی رہی کہ چھٹی ہو گئی۔ پورے راستے بھی بس وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب وہ گھر پہنچی تب بھی اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ خوش ہے۔ اگلے دن سبھی اس کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر آ گئے۔ اس کی دوست اس کے کمرے میں آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، زمل، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، اماں بہت خوش ہیں سچ میں، اور تمہاری اماں بھی مان گئی ہیں اس رشتے کے لیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں ایک دم سے کیسے مان گئی ہیں، کیونکہ اس کی اماں کو تو چڑ تھی اس کی دوست سے کیونکہ وہ امیر تھی، لیکن اب اس کا رشتہ بھی کر دیا تھا۔ اگلے دن جب وہ کالج گئی تو اس کا ابا اسے کالج چھوڑ آیا اور چھٹی کے وقت بھی اس کا ابا ہی اسے لینے آیا، لیکن اگلے دن اس کی اماں نے اسے کالج بھیجنے سے انکار کر دیا۔ وہ حیران ہو گئی اس کی اماں ایسا کیوں کہہ رہی تھیں، مگر اسے حیرانگی ہوئی وجہ جان کر۔ اس کی اماں اس وجہ سے اسے نہیں اب کالج جانے دے رہی تھیں کیونکہ اس کا رشتہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آئے دن اس کی ساس مہنگے مہنگے جوڑے لے کر آتی تھی۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی نہل کی کال آتی تو وہ اس سے بات بھی کر لیتی تھی۔ آج بھی اس کی ساس آئی ہوئی تھی اور اس کے لیے کپڑے لائی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی وہ مہنگے مہنگے جوڑے دیکھ رہی تھی جو کہ کبھی اس کا خواب ہوا کرتے تھے۔ اس نے ایک جوڑا اٹھا کر ڈالا مگر اس سے عجیب لگنے لگا۔ جب اس نے گلے میں دوپٹہ کیا تو اسے یوں لگنے لگا جیسے اس کا گلا بند ہو رہا ہو۔ اس نے جلدی سے وہ بھاری کپڑے اتار دیے۔ اچانک اس کی نظر بارڈر پر پڑی۔ وہ حیرت سے ادھر دیکھنے لگی جہاں پر زرد رنگ کا ہلکا سا نشان تھا۔ جہاں تک اس کا خیال تھا یہ نشان پہلے بھی وہ ایک ڈریس پر دیکھ چکی تھی۔ وہ سارے کپڑوں کو دیکھنے لگی، سب پر لگا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، تھوڑی پریشان ہوئی۔ وہ سب کپڑے نہ جانے اسے کیوں برے لگ رہے تھے، وہ خود نہیں جانتی تھی، حالانکہ وہ اتنے پیارے اور بہت مہنگے کپڑے تھے۔ اس کی اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی، یہ کپڑے ایسے کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔
अब अगर देख लिए हैं तो इन्हें समेट दो, इसकी अम्मा ये कहकर चली गईं। पर वो हैरान थी कि अब तक जो भी कपड़े आए थे सब पर यही निशान क्यों बना हुआ था, जर्द रंग का। चंद दिन बाद उसकी सास आई और शादी के डेट फिक्स कर गई। वो हैरान थी कि उसकी दोस्त बताती थी कि उसकी अम्मा शादी के लिए नहीं मान रही, मगर वो अचानक से कैसे मान गई थी और फिर उसके लिए इतने महंगे महंगे कपड़े क्यों लाती थी। अब उन्हें शादी की क्या जल्दी लग गई थी। ये सारी बातें अब उसे परेशान करने लगी थी। रात के वक्त वो बैठी हुई थी कि उसकी दोस्त की कॉल आई। उसने कॉल पिक की। आप मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? मुझे इधर से कॉल करनी पड़ी। दूसरी तरफ से उसके भाई की आवाज़ गूंजी। इसकी कॉल कट कर दी। वो खुद नहीं जानती थी वो इसके साथ बात क्यों नहीं करना चाहती। न जाने क्यों उसका हर वक्त उससे दिल बेजार बेजार रहता था। वो उससे क्यों नहीं बात कर रही। वो इस बात से बहुत परेशान थी। वो जब भी उसके बारे में सोचती तो न जाने उसे क्या होने लगता। वो उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहती थी, बस वो बेजार बेजार थी। दिन कैसे गुजरे पता ही न चला कि उसकी शादी का दिन आ गया, मगर वो परेशान परेशान लग रही थी। उसकी अम्मा को उसका रवैया देखकर हैरत हो रही थी। न जाने उसे क्या हो गया था, वो क्यों ऐसे परेशान थी। पहले तो वो बहुत खुश थी जब उसका रिश्ता हुआ था। वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई थी। यहाँ पर सभी बहुत खुश थे, मगर न जाने वो खुद खुश नहीं थी। उसका शौहर जब जब उसका उदास चेहरा देखता उससे परेशानी होने लगती। थोड़ी देर बाद उसकी सास उसे कमरे में छोड़ गई। वो कमरे में बैठी इर्द गिर्द देख रही थी। इतने में उसकी नज़र अपने शरारे पर गई। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। जहाँ पर सर्द रंग लगा हुआ था वो उठकर वॉशरूम की तरफ गई और वहाँ से वो जगह धोई और कमरे से बाहर निकली। अचानक उसकी चीख निकली। वो गिरने लगी कि उसकी दोस्त ने कमर से पकड़ लिया। वो घबराती हुई अपनी दोस्त की तरफ देखने लगी। उसकी दोस्त उसके शरारे पर देखने लगी जहाँ से पानी गिर रहा था। वो हैरत से देखने लगी। क्या हुआ है? तुम इतना घबरा क्यों गई हो और ये गीला क्यों किया है? अभी तुम फिसल कर फर्श पर गिरती, इसकी दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त चली गई। वो बेड पर बैठ गई। इतने में उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ। वो अपने शौहर को देखकर निगाहें झुकाने लगी। वो इसके सामने आकर बैठ गया। मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही मेरी कॉल पिक कर रही थी। मैंने आपको कुछ कहा तो नहीं था जो वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी? उसने नरम लहजे में पूछा कि जाने उसे गुस्सा क्यों आने लगा। वो गुस्से में एकदम से उठ खड़ी हुई। उसका शौहर देखता रहा, मगर उसने अपने शौहर से कोई बात न की। अगले दिन जब उसकी आंख खुली वो गहरी सांस लेकर इर्द गिर्द देखने लगी। उसका शौहर कमरे में मौजूद नहीं था। उसने सुख का सांस लिया और फ्रेश हो गई। इतने में उसकी दोस्त उसके लिए नाश्ता लेकर आ गई। वो नाश्ता करने लगी। उसकी दोस्त भी उसके पास बैठी हुई थी। अचानक उसकी दोस्त उसके कपड़ों की तरफ देखकर बोली, ये तुम्हारे कपड़ों पर जर्द रंग कैसा है? ये तो बिल्कुल नए कपड़े हैं। वो हैरानगी से पूछने लगी, मगर उसने कोई जवाब न दिया। वो काफ़ी देर पूछती रही। आखिर उसने तंग आकर कहा, आपके घर से जो कपड़े आते हैं उन पर ऐसा ही रंग लगा होता है और जब भी मैं ये डालती हूँ मुझे उलझन होने लगती है। मेरा सांस बंद होने लगता है। पहले मुझे तुम्हारा भाई अच्छा लगता था, मगर अब न जाने क्यों मुझे उलझन होती है इनसे भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये कपड़ों पर निशान कैसा है? मेरे साथ क्या हो रहा है? वो गहरी सांस लेती हुई बोली और वो इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। इसकी सहेली के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। वो परेशान हो गई, न जाने उसकी दोस्त को गुस्सा क्यों आ गया था। इसके बाद इसके साथ यही होता। वो जो सूट डालती उस पर ऐसा ही होता। बाकी सब कुछ तो ठीक था, सब उसके साथ बहुत अच्छे थे, मगर वो फिर भी परेशान परेशान रहती थी। रात का वक्त था। वो कोने में बैठी हुई थी। उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ। वो अपने शौहर की तरफ देखने लगी। जिमिल, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो तुम ऐसे कर रही हो मेरे साथ? वो इसके पास बैठता हुआ बोला, मगर बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद नहीं जानती मैं आपके साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। बात बात पर आप पर गुस्सा क्यों करती हूँ? न जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। जब भी आपको देखती हूँ न जाने मुझे क्या होने लगता है। वो घबराते हुए उससे कहने लगी। वो इसके मुंह की तरफ देख रहा था। वो वहाँ से बाहर चली आई। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था।
آج بھی اس کے دماغ میں وہی بات گم رہی تھی، زرد رنگ والی۔ وہ یوں ہی ٹہلتی رہی، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، اچانک اس کی نظر الماری کی طرف گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، پورا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں پر اس کے کپڑے موجود نہیں تھے۔ وہ حیران ہوئی اور کمرے سے باہر آئی۔ اچانک اس کی نظر اپنی ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے جیسے ہی جا کر کمرے کا دروازہ کھولا، اس کی روح تک لرز گئی، کیونکہ اس کی ساس اس کے کپڑوں پر کچھ پھینک رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے غصے میں بولی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اس قدر غصے میں کہا کہ اس کی ساس ایک دم سے ڈر گئیں۔ اس کی آواز سن کر اس کا شوہر اور اس کی دوست بھی آ گئے۔ وہ حیرت سے اپنی اماں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی اماں کی طرف گیا اور حیرانگی سے پوچھنے لگا، اماں یہ سب کچھ کیا ہے؟ پہلے مجھے بس شک ہوا تھا کہ آپ نے اس پر جادو کیا ہے، لیکن اب یقین ہو گیا ہے یہ دم کیا ہوا زرد رنگ کا پانی آپ اس کے کپڑوں پر ڈالتی ہیں تاکہ یہ آپ کے بیٹے سے نفرت کرے۔ اماں کیسے آپ یہ سب کر رہی ہیں؟ آپ خود ہی اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتی ہیں۔ حیرت ہے ویسے۔ وہ اپنی ماں کو غصے میں کہنے لگا۔ اس کی اماں کے ہاتھ میں سے وہ بوتل گر گئی۔ اماں آئندہ مجھے اپنا بیٹا مت کہنا، نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، آپ تو میری خوشیوں کی دشمن ہیں۔ وہ غصے میں کہہ کر جانے لگا۔ اس کی اماں ایک دم سے روتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور معافی مانگنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اسے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ خود ہی تم سے تنگ ہو کر تمہیں چھوڑ کر چلی جائے۔ تم نے ہمیشہ میری بات مانی، بچپن سے لے کر آج تک جو میں تم سے کہتی تم میری بات مانتے۔ جب تم میرے منع کرنے کے باوجود اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، مجھے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی، اور جب اسے اپنے گھر میں دیکھا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے لگا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یہ تم سے بیزار ہو کر خود تمہیں چھوڑ جائے۔ بیٹا تم ایسے کرو کہ مجھے معاف کر دو، تم میرے بیٹے ہو نا، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں گی، مجھے معاف کر دو۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی۔ اس نے اپنی اماں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ سارے کپڑے بھی پھینک دیے۔ وہ پھر سے اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہو گئی اور وہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہنے لگے۔